ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਿੱਠੇ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੂਥਲੀ ਹੁਣ ਉਸ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਫਟਰ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ, ਅਖਬਾਰ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੌੜ ਲੱਗੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ, ਉਹ ਇਹ ਦੌੜ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ 5.5 ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭੱਜ ਲਓ, ਕਿਉਬੈਕ ਭੱਜ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਨੇ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ICCRs ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਔਰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਦੂਸਰਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਕਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਚੰਗੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਚੰਗੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਪੀਲਾਨੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੈਪੀਲਾਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ USP ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੱਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ 2-3 ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਜਲੀ ਉਜੈਨ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਤੌਰ ਕੈਪੀਲਾਨੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਲਫ਼ਜ਼, ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ। शिवानी जी, स्वागत है। थैंक यू रणवीर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग अस इन दिस शो। थैंक यू सो मच जी। अंजलि जी, आपका भी हम देश प्रदेश शो में स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच जी। अंजलि जी, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ, ਕੈਪੀਲਾਨੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਮਈ ਦੇ ਇਨਟੇਕ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੈप्टेम्बर ਦੇ इनटेक ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਨਾउंसमेंट ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ वाली है? देखिए रणवीर जी, वैसे तो मैं चाहूँगी कि आज अंजलि हमारे साथ हैं तो स्टूडेंट्स को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो अंजलि की तरफ से ही मिले, लेकिन स्टिल मैं ये ज़रूर स्टूडेंट्स को कह दूँ कि आज का शो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स ब्रिटिश कोलंबिया में अपनी एजुकेशन प्लान कर रहे हैं उनके लिए कैपिलानो यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन है और रहेगा। बहुत अच्छा करिकुलम ये यूनिवर्सिटी आपके लिए ऑफ़र करती है और एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें, कोर्सेज़ की बात करें, इनटेक्स की अगर हम बात करें, तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए है। सो जो स्टूडेंट्स ब्रिटिश कोलंबिया जाना चाहते हैं, मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि इस शो को ध्यान से देखें ताकि आप कैपिलानो यूनिवर्सिटी का एडवांटेज ज़रूर उठा सकें। बाकी की जो चीज़ें हैं हम लोग अंजलि से ही सुनेंगे। जी। अंजलि जी, ये जो आपकी यूनिवर्सिटी है इसके बारे में तकरीबन हर स्टूडेंट्स को पता है, चाहे वो भारत बैठा है, पंजाब में या कनाडा भी चला गया, एक दूसरी स्टेट से बात होती है तो कैपिलानो का जिक्र ज़रूर आता है स्टूडेंट्स में। बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड है। अब हम इसकी बात करें तो जो स्टूडेंट अभी निकला है, +2 करके निकला है, ग्रेजुएशन करके पास आउट हुआ, जिसने जाना है, तो अभी एक धारणा है, एक मिथ है पंजाब में कि यूनिवर्सिटी में जाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, कि बहुत सारा पैसा लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग जाते भी हैं। पहले तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि किस किस तरह के प्रोग्राम है, PG, डिग्री, एसोसिएट डिग्री, डिप्लोमा, क्या क्या आपके पास है अवेलेबल? ओके, तो मैं पहले आपको कैपिलानो यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहूँगी। सो कैपिलानो यूनिवर्सिटी जो है ब्रिटिश कोलंबिया में है और जो सिटी हम बेस्ड आउट हैं वो नॉर्थ वैंकूवर है। सो हमारे कैंपस से डाउनटाउन वैंकूवर बस 15-20 मिनट्स अवे है।
सरे इज़ जस्ट हाफ एन आवर अवे। तो बेसिकली द लोकेशन जो है हमारा वो बहुत काफ़ी better प्राइम है, हम्म। काफ़ी प्राइम है, यू नो। करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। हमारी यूनिवर्सिटी जो है ब्रिटिश कोलंबिया की फर्स्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी है, 1968 में फाउंडेड है। एंड बेसिकली हमारा, आपने अभी रिसेंट न्यूज़ में भी देखा होगा कि 4th टाइम कॉन्टीन्यूसली हमारी जो रैंकिंग है ब्रिटिश कोलंबिया के टॉप एम्प्लॉयर्स में आती है। तो हमारे ग्रेजुएट्स जो हैं हाईली एम्प्लॉयड हैं बेस्ड वहाँ पे कनाडा में। सो यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है, हमारा वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, और इस टाइम पे भी हमें सक्सेस रेट में कोई चैलेंजेस नहीं है यूनिवर्सिटी जी। के लिए। अंजलि जी, आपने जो बोला इसमें से एक बहुत ही बढ़िया मैसेज निकल के है। मैसेज ये है कि स्टूडेंट कभी अक्सर पूछते हैं कि जी मैं यूनिवर्सिटी क्यों जाऊँ, इतना पैसा क्यों लगाऊँ। तो अभी इन्होंने एक लाइन बोली है, उनका आंसर है खुद का कि पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, जॉब, एक हमको जॉब चाहिए होती है। वो जब हम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जैसे अभी कैपिलानो की बात हुई है, उसमें ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट रेट है जो वो बहुत बड़ा है, उनका बहुत सबसे अच्छा है कनाडा में। यही एक फ़र्क होता है कि डिग्री करने के बाद या डिप्लोमा करने के बाद जब भी आप एक चंगी यूनिवर्सिटी से, अच्छी यूनिवर्सिटी से किसी एम्प्लॉयर के पास जाते हैं तो उसके बेनिफिट होते हैं। अंजलि जी, मेरा एक और क्वेश्चन है। कैपिलानो के बारे में बहुत सारी अभी बातें करनी है हमने यूएसपीस की। मैंने इसलिए आपको पूछा था कि क्या क्या प्रोग्राम है, और उस प्रोग्राम के अनुसार हम फीस स्ट्रक्चर डिटेल में स्टूडेंट्स से साझा करेंगे। पहले बताओ आपके डिग्री, डिप्लोमा, एसोसिएट डिग्री क्या कुछ है? हाँ जी, तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास जो 12th जस्ट पास आउट किए हैं वो एसोसिएट डिग्रीज़ के लिए जा सकते हैं, जो कि 2 इयर्स के लिए होता है। और इनके लिए बच्चों को 3 इयर्स का स्टे बैक भी मिलता है, क्योंकि हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं तो हमारे पास स्टे बैक गारंटीड होती है, राइट। एसोसिएट डिग्रीज़ के अलावा हमारे पास जो 12th पास आउट्स अंडर ग्रेजुएट्स होते हैं उनके लिए डिप्लोमा भी है, वो भी 2 इयर्स का है, और बच्चों को 3 इयर्स की स्टे बैक मिलेगी उसके लिए। और इसके साथ साथ हमारे पास बैचलर्स डिग्री भी है जो 4 इयर्स की होती है कनाडा में। मेजरली आपको ये कोर्सेज बिजनेस, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, साइंस एंड आर्ट्स में मिलेगी। तो हमारे पास हर सेक्टर के बच्चों के लिए ऑप्शन है। बच्चे के पास मैथ्स है तो भी ऑप्शन है, नहीं है तो भी ऑप्शन है। इट्स मतलब बिल्कुल ही बच्चे की चॉइस है कि बच्चे डिग्री के लिए जाना चाहते हैं, डिप्लोमा जाना चाहते हैं, एसोसिएट डिग्री जाना चाहते हैं। और एक और मैं बहुत अच्छी पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगी आपको और सारे बच्चों को कि एसोसिएट डिग्रीज जो है हमारे 2 साल के, उसको पढ़ने के बाद आप क्रेडिट ट्रांसफ़र भी कैपिलानो में ले सकते हैं इंटरनली, और आप अपनी डिग्री को सीधा 3rd ईयर में बैचलर्स डिग्री में एक्सटेंड करा सकते हैं जी। तो अभी एक मेरा क्वेश्चन आ रहा है मन में। पंजाब में जब भी किसी ने कनाडा जाना है तो उसका टारगेट होता है 6 एज का, क्योंकि उसने एसडीएस प्रोग्राम में फाइल डालनी होती है। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, तो वो क्या करता है, प्राइवेट कॉलेज को चूज़ कर लेता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक में 5.5 पे भी एडमिशन देती है। एडमिशन देना और वीज़ा आना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। क्या ये पॉसिबल है कि एक स्टूडेंट्स अच्छे नंबर से पास हुआ है लेकिन एक मॉड्यूल में 5.5, एडमिशन की क्या पॉसिबिलिटीज़? बिल्कुल, हमारे पास 1-2 ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें हम 5.5 एक मॉड्यूल में ले सकते हैं। बट ये हाईली मैं रिकमेंड नहीं करूँगी वीज़ा पर्पस से, क्योंकि आपको पता है कि वीज़ा में एसडीएस कैटेगरी की सक्सेस रेट 90-95% हाई है एज़ कम्पेयर टू दूसरे कैटेगरीज़ में। तो हमारा सजेशन यही होता है कि ठीक है, आप एप्लीकेशन पर्पस के लिए आप एप्लीकेशन फ़ाइल कर दो, बट वीज़ा के लिए मतलब हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि आप एसडीएस के लिए ही जाओ एंड प्रेफर करो 6 बैंड, क्योंकि सक्सेस रेट काफ़ी अच्छी होगी। और हम यूनिवर्सिटी हैं तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे एसडीएस में ही फाइल करें वीज़ा। शिवानी जी, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ, ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਊਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। देखिए रणवीर जी, सबसे बड़ा इशू तो फाइनेंसेस को लेके ही रहता है स्टूडेंट का, क्योंकि डिग्री के लिए ऑब्वियसली आपको 4 साल की फ़ीस पे करनी है, 4 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। और एक थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग मार्केट में इस तरीके से है कि अगर आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्लान करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो फ़ीस है वो हायर साइड होगी कंपैरेटिवली अगर हम कॉलेज के साथ इस चीज़ को देखें। लेकिन मैं स्टूडेंट्स को फिर भी ये चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे अंजलि ने कहा है कि अगर आप यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन करते हैं तो जो पोस्ट एजुकेशन बेनिफिट्स हैं, आपके एजुकेशन कंप्लीट
कंप्लीट करने के बाद जो आपकी सेटलमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, प्रॉस्पेक्ट बहुत हाई है। सो अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटी से अपना एजुकेशन डिप्लोमा भी अगर आप करते हैं, एसोसिएट डिग्री करते हैं या डिग्री करते हैं, तो ये कंफर्म्ड है कि आप अच्छे एम्प्लॉयर्स के साथ इंडस्ट्री में अच्छी कंपनीज के साथ अच्छे पैकेज पे जो है वो अपने लिए जॉब रिटेन कर पाओगे। सो ये चीज़ को इनिशियली अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जनरल लेवल पे भी अगर हम लोग बात करें और मेन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ कंपैरिजन करें तो फीस इतना ज़्यादा नहीं है। मिसकंसेप्शन, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है स्टूडेंट्स के पास। डाटा आप अंजलि जी पे लग रहे हैं। अंजलि जी कितनी, एक अगर हम डिप्लोमा की बात करें, बेसिक्स +2 के बाद बच्चे ने जाना है डिप्लोमा है, पर ईयर की, नॉट पूरे कंप्लीट की नहीं हम पूछते, एक साल की कितनी फीस है? एक साल की करीबन आपको $20,000 के आसपास आती है। बट मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हमारा करिकुलम जो है वो सिर्फ क्लासरूम स्टडीज़ पे नहीं है। हम जो भी करिकुलम प्रोवाइड करते हैं उन सब में प्रैक्टिकल लर्निंग होती है। ओके, राइट। सो उस हिसाब से अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखो तो आप नॉर्मल कॉलेजेस में भी आज के डेट में कहीं पे भी 18,000 से बिलो नहीं है। 15,000 से 20-22 तक तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम एक टॉप यूनिवर्सिटी है ब्रिटिश कोलंबिया की, और हम प्रैक्टिकल्स दे रहे हैं। गारंटीड है कि कितने सारे कोर्सेज में हमारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो इस हिसाब से अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखोगे तो हम काफ़ी प्रिटी रीजनेबल हैं। अभी हैं आपके पास मई की कुछ सीट्स बची हैं? हाँ, हमारे पास मई सितंबर दोनों के लिए एप्लीकेशंस ऑनगोइंग हैं। सो बच्चे मई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, सितंबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है वो सितंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने जस्ट 12th कंप्लीट करी है वो मई और सितंबर दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शिवानी जी, ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੁਆਇਸ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਫਟਾਫਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪੀਆਰ ਲਵਾਂ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? देखिए, मैं पर्सनली हमेशा स्टूडेंट्स को एसोसिएट डिग्री के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट करती हूँ इस कोर्स को, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल है। सिंपल लैंग्वेज में आप इसको डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री कह सकते हैं। सो इनिशियली आपको डिप्लोमा ही फील होगा क्योंकि 2 इयर्स आपको एसोसिएट डिग्री में जो है वो लगाने हैं। उसके बाद आप अपना पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लेके अपनी पीआर जो है उसको टारगेट कर सकते हैं। लेटर ऑन इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि आपको डिग्री कंप्लीट करनी है तो किसी भी टाइम पे आप 3rd और 4th ईयर को कंटिन्यू करके अपना डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। सो ये चीज़ एक बहुत बेनिफिट वाली है स्टूडेंट्स के लिए। हमेशा डिप्लोमा को ना टारगेट करके आप डिग्री को इस रूट से भी जो है वो कवर अप कर सकते हो। जी, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲਿਆ, डिग्री 4 साल ਦੀ, 2 साल फिर करने पैने उन्होंने? ऑब्वियसली रणवीर जी, 4 साल आपको डिग्री लेने के लिए 4 साल कंप्लीट करने ਕੀ पड़ेंगे। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲਿਆ, ਪੀਆਰ ਲਈ 2 ਜਾਂ 3 साल बाद ਅਸੀਂ फिर ये डेफिनेटली जो है वो पॉसिबल है और स्टूडेंट्स इस ऑफ़र का फ़ायदा बच्चों को ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम ये चीज़ देखते हैं प्रैक्टिकली जब स्टूडेंट हम लोगों के पास विजिट करता है, पॉकेट इतना ज़्यादा एलिजिबल ना होने की वजह से डिग्री प्लान नहीं की जाती। सो स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको ऑप्ट किया जा सकता है कि इनिशियली आप एसोसिएट डिग्री लेके 2 साल की फ़ीस आप इन्वेस्ट जैसे करना चाहते हैं अपनी पॉकेट के हिसाब से वैसे करके फ्यूचर में पीआर लेने के बाद अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं व्हेन यू फील दैट यू हैव इनफ फंड्स टू कंप्लीट इट। अंजलि जी, पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पहले तो काउंसलिंग थी, फिर एक्सपर्ट्स आए इसमें, फिर उसके बाद बिजनेसमैन लोग घुस के, फिर इन्वेस्टर आ गए। इन्वेस्टर कैसे कंसल्टेंट्स हैं जो कहते हैं जी सारे पैसे वीज़े के बाद लूँगा और डबल लूँ ट्रिपल लूँ, बच्चे देते हैं। अब क्या क्या चीज़ गैप है, अभी गैप क्या, किस चीज़ गैप होने लगी हैं, वो क्या है कि कॉप प्रोग्राम बहुत बढ़िया प्रोग्राम है जिसके बारे में कोई बताता नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वीज़ा ग्रांटेड हो, पैसे बाद में दो चीज़ों के अलावा स्टूडेंट सुनना नहीं चाहता। जब हम कॉप अप की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से एक बच्चे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। किस किस प्रोग्राम में कॉप प्रोग्राम है आपके, और थोड़ा इसका डिटेल में बताएं इसके बेनिफिट क्या है। ओके, सो हमारे पास कोऑप में यूजी पीजी दोनों लेवल्स के लिए है। तो मैं अगर पीजी वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास प्रैक्टिकम होती है। सपोज करो बच्चे की 4 सेमेस्टर है, 3 सेमेस्टर बच्चे क्लासरूम में पढ़ेंगे, लास्ट सेमेस्टर जो होगी वो हैंड ऑन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होती है बच्चे के लिए, राइट। सो बेसिकली उसमें क्या होता है कि जॉब अश्योरेंस मिल जाती है बच्चों को, क्योंकि जनरली आप जहाँ पे भी जिस एम्प्लॉयर के साथ वर्क करते हो वही आपको एज अ परमानेंट एम्प्लॉय हायर कर लेते हैं। वैसे भी नए सिरे कहीं जॉब करने के बाद में तो कनाडा में एक सबसे बड़ी चीज़ फेमस है कि आपने जॉब लेनी तो पहले पूछते हैं रेफरेंस एक्सपीरियंस क्या है। तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट
मिल जाता है ड्यूरिंग द स्टडी? बिल्कुल मिल जाता है ड्यूरिंग द स्टडी। इनफैक्ट आप कोर्स कंप्लीट करने के पहले आपको जॉब अश्योर्ड होती है। तो ये हमारे पास पीजी लेवल में भी है, यूजी लेवल में भी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम प्रैक्टिकल लर्निंग ज़रूर प्रोवाइड करते हैं कैपिलानो में, और उसके लिए हमारे पास इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको खुद भी 25 ईयर्स की एक्सपीरियंस होती है मिनिमम, राइट। तो ये एक्सपर्ट्स जो हैं वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड होते हैं हमारे बच्चों के लिए, ताकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दे सके वो जी। सो प्रैक्टिकल हमारा सबसे ज़्यादा मेजर फोकस होता है कैपिलानो में। जी, कैपिलानो यूनिवर्सिटी का सबसे प्लस पॉइंट, बाकी तो बहुत सारे प्लस पॉइंट है कि जो वेदर है, वेदर पूरे बीसी का अच्छा नहीं है। एक एरिया है जो सरी है, खासकर वैंकूवर की हम बात करते हैं, विक्टोरिया की बात करते हैं, नीचे चले जाएं मेरठ तक चले जाएं जहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती, और ये लोकेशन है जो बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। सिटी वाइज भी ट्रांसपोर्टेशन का बहुत वो है, और जॉब का, एम्प्लॉय का और वेदर का, ये इनकी एक बहुत प्लस पॉइंट है जो शायद कनाडा में किसी भी यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। शिवानी जी, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਹੁਣ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕੈਪੀਲਾਨੋ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ओवरऑल की माहौल है, क्योंकि मैं तो आप आज काफ़ी दिनों के बाद स्टूडियो के विच आया, अपडेट मेरे को भी नहीं की चल रहा है। देखिए रणवीर जी, मैं ये कहूँगी कि अभी जो सिनारियो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और ये जो फेब का मंथ है, फरवरी वाला जो महीना बहुत प्रोडक्टिव रहा है। हम लोग ये देख रहे हैं कि हाई कमीशन की तरफ से रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, स्टूडेंट्स आर आल्सो हैप्पी, एंड बच्चों को बैक टू बैक रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एक प्लस पॉइंट और भी जो सामने आया है वो ये है, इनफैक्ट आई वुड से इट्स अ गुड न्यूज़ कि ओपन वर्क परमिट वाले जो केसेस हैं उनको भी हाई कमीशन ने जो है वो प्रोसेस करना शुरू कर दिया है। सो उसके भी बैक टू बैक रिजल्ट्स हैं। ओवरऑल मुझे ये लगता है कि हाई कमीशन बहुत फास्ट ट्रैक हुआ है और स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। जो ये इस तरीके का जो न्यूज़ था मार्केट में कि वीज़ाज़ नहीं आ रहे, सो ऐसा नहीं है। वीज़ाज़ के रिजल्ट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो जिन बच्चों की भी एप्लीकेशंस अंडर प्रोसेस हैं वो पॉजिटिव रहें, क्योंकि आई बिलीव कि आगे भी जो रिजल्ट्स हैं वो इसी तरीके से रहेंगे। अंजलि जी, आपका मतलब कैपिलानो, ठीक है, आप प्रेजेंट कर रहे हो, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो, और एक स्टूडेंट जिसने कनाडा जाना है, उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। गैप ये है कि आप उन तक ये मैसेज नहीं दे सकते कि हमारी यूनिवर्सिटी अच्छी है, आप इसमें एडमिशन लो। वो मैसेज किसने देना है कि आपका मीडियोकर होता है कंसल्टेंट्स। पंजाब में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टाई अप ही नहीं है, और ये एक गैप, बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है। बहुत सारी कंपनी हैं जिनके पास है, जैसे मैक्रो ग्लोबल और भी होंगी, ज़्यादातर के पास नहीं है। तो इसका क्या सोल्यूशन देखते हो आप लोग? बेसिकली हमारे पास जो भी एजेंट्स होते हैं, हम डायरेक्ट एप्लीकेशन भी लेते हैं बच्चों से। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चे एजेंट्स डायरेक्ट दे सकते हैं, डायरेक्ट भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं जी। शिवानी जी, थोड़ा समा हैगा, थोड़ा जा ब्रीफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਜਾਂ स्टूडेंट वीज़ा हैगा, या इस वक्त केड़े वीज़ाज ओपन ने? इस वक्त टूरिस्ट भी अप्लाई होना शुरू हो गया? देखिए रणवीर जी, ये जो साल शुरू हुआ है ये बहुत ही पॉजिटिव है, और डे बाय डे हम लोग ये देख रहे हैं कि हाई कमीशन बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं। आप कनाडा किसी भी कैटेगरी के लिए प्लान करना चाहते हैं, दिस इज़ द हाई टाइम जब आपको अपनी एप्लीकेशन प्लान करनी चाहिए। स्टूडेंट्स बिल्कुल पॉजिटिव रहें। मई 2022 के एडमिशन्स हैं, सितंबर 2022 के एडमिशन्स हैं, फुल स्विंग हैं। मेरा सिंपल रिक्वेस्ट ये है स्टूडेंट्स के लिए कि टाइम वेस्ट ना करके जितना जल्दी हो सकता है अपने चॉइस के कॉलेज प्रोग्राम के लिए अपना ऑफर लेटर आप डालें। और आपके लिए ये बहुत जेंटल डिसीजन होगा कि अगर आप एक लाइसेंस्ड रेगुलेटेड कंसल्टेंट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जहाँ डायरेक्ट एसोसिएशंस हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ। एंड साथ के साथ मैं ये भी कह दूँ कि ओपन वर्क परमिट वाले जो कैंडिडेट्स हैं, बहुत पॉजिटिव साइंस हैं इमिग्रेशन की तरफ से। सो आप वेट मत कीजिए, एक एक्सपर्ट असेसमेंट के साथ अपनी एप्लीकेशन को जल्दी से जल्दी फाइल कीजिए। रिजल्ट्स बहुत फास्ट हैं। इसके अलावा विजिटर वीज़ा, सुपर वीज़ा वाले जो कैंडिडेट्स हैं, समर्स कनाडा में स्टार्ट होने वाले हैं, इंडिया में भी। सो ये टाइम है जब मैक्सिमम विजिटर वीज़ा हाई कमीशन की तरफ से दिए जाते हैं। फैमिली रीयूनियन पर्पसेस के लिए आप अपना विजिटर वीज़ा प्लान कीजिए। बहुत अच्छा सक्सेस रेट है, इनफैक्ट 15-20 दिनों के अंदर रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। सुपर वीज़ा के लिए आप अपनी इनकम असेसमेंट के लिए आप हम लोगों को पर्सनली आके मिलिए हमारे मोहाली ऑफिस में, खन्ना ऑफिस में। नंबर्स भी हमारे फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी असेसमेंट हम लोगों से ले सकते हैं। थैंक यू दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਪੀਲਾਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ,
ਕੋਆਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਔਰ ਵਿਦਆਊਟ ਮੈਥ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮਈ ਔਰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਖੰਨਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 2 ਹੀ ਆਫਿਸ ਨੇ ਜੀ, हाँ जी, ਦੋਵਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।